हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों का स्वागत है in another session of reading Bhagavad Gita. We are reading chapter 10, the opulence of the absolute, and we will be continuing with our reading from verse 12. And till now we had discussed in the earlier section, which was pure bhakti, the essence of Bhagavad Gita. We discussed about the four important shlokas, that is catuḥ-ślokī Bhagavad Gita. तो उसमें भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता स्वयं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्ध भावा समावितः मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोध्यस्य परस्परम कथयन्स्य च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये मां चिन्तयन्ति ते। एंड देन तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानं जन्मतमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भावस्वतः। तो ये चार श्लोक जो हैं शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं, किस तरीके से एक भक्त को अपना जीवन जीना चाहिए, उसको अगर ये करेगा तो क्या मिलेगा, कैसे भगवान उसको क्या प्रदान करेंगे इत्यादि, ये सब जो है भगवान यहाँ पे बताए। और अब जो है इन चार मुख्य श्लोकों को सुनने के बाद कृष्ण से अर्जुन जो हैं अब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। भगवान का गुणगान, भगवान किस तरीके से कितने महान हैं उसके बारे में जो है अब इस सेक्शन में हम जो है अर्जुन से हम सुनेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम जो है इसी तरीके से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे रहें और भगवद गीता को समझने का प्रयास जो है हमारा वो चलता रहे और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय
Yashodanandana Jayo Brajana Ranjana Jayo Brajana Ranjana Jayo Yashodanandana Jayo Brajana Ranjana Jayo Brajana Ranjana Jayo Yamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Vihari Jayo Yamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaur Haribo. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamyam Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuktapadgamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sadhvetam Savdhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lita Shri Vishakhamritam Sha He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhuva Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Vishtai Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 12. Arjuna Vacha Param Brahma Param Dhama Pavitram Paravam Bhavan Purusham Shashvatam Devyam Adidevam Ajam Vibhum. So, this text, Arjun is telling, is declaring Param Brahma, Param Dhama.
You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode. Pavitram Paramam Bhavan, the purest and the absolute truth. Purusham Shashvatam Divyam, you are the eternal personality, transcendental. Adidevam Ajam Vibhum, the original Lord, unborn and the greatest. Ahustvam Rishaya Sarve Devarshi Naradas Tatha Asitaro Devalo Vyasaha Swayam Cheva Bravishami Me. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Arjun said, you are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala and Vyasa confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. So there are so many points which we can learn from what Arjuna is telling here. तो एक चीज हम ये यहाँ पे सीखने को मिलता है कि कई लोग जो हैं कहते हैं कि कृष्ण जो हैं वो साधारण एक हिस्टोरिकल पर्सन थे, तो इस चीज का भी यहाँ पे खंडन है। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि वो खुद ही भगवान है, उसका भी यहाँ पे समझ में आता है हमको कि देखो नारद जी, असित, देवल, व्यास जी पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं कृष्ण ही भगवान है, पर कहीं भी फलाना व्यक्ति जो अपने आप को डिक्लेयर करता है आई एम गॉड, क्या उसका नाम कहीं आता है? नहीं। So what is the evidence that Krishna is God or any particular entity would be declared as God? At least there must be some witnesses who must have, they must have said, yes, such a great personality is God. So they must themselves be such great personalities, as great as sages like Narada, Siddha, Deval and Vyas. So have these sages declared someone else as God also? No. तो इसलिए हमें जो है किसी भी के कहने पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि फलाना फलाना व्यक्ति जो है वो भगवान है, या देखिए वो बाबा जी बहुत चमत्कारी हैं, वो भगवान है। कोई कह रहे हैं आज के समय में कि वो कल्कि के अवतार हैं, है ना। तो वी शुड नॉट बिकम फूल्स, वी शुड have some intelligence at least. We should refer Bhagavad Gita. So how the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is the Supreme Personality of Godhead. His purest, His ultimate truth, eternal, transcendental, original person, unborn. So all these qualities are there in Krishna. Purport. In these two verses, the Supreme Lord gives a chance to the Mayavadi philosopher. For here it is clear that the Supreme is different from the individual soul. तो यहाँ पे क्या है, दिख रहा है कि भगवान परम है, he is different from the soul. तो मायावादी को एक मौका दिया जा रहा है, समझ जाओ, देखो नहीं हूं मैं, आत्मा अलग है ना। परम ब्रह्म बताया गया, नहीं कहते ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो वो ब्रह्म जो है का अर्थ क्या है कि वो आत्मा है, पर मायावादी क्या सोचते हैं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं भगवान हूं, मैं वो परम ब्रह्म मैं हूं, वो ये सोचते हैं। पर यहाँ पे अर्जुन क्या डिक्लेयर करें, नो, परम ब्रह्म इज कृष्णा। So here is a chance for Mayavadis to understand. Arjuna, after hearing the essential 4 verses of Bhagavad-gītā in this chapter, became completely free from all doubts and accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead.
He at once boldly declares, जैसी चतुश्लोकी भगवद गीता सुनी और वो पूरा अच्छे से आगे समझ में, हाँ भगवान आप ही परम भगवान हो. He boldly declares, "You are Param Brahma, the Supreme Personality of Godhead." And previously, Krishna stated that He is the originator of everything and everyone. Every demigod and every human being is dependent on Him. Men, demigods, out of ignorance, think that they are absolute and independent of the Supreme Personality of Godhead. That ignorance is removed perfectly by the discharge of devotional service. तो कई लोग, कई देवी देवता ऐसा सोच सकते हैं कि वो भगवान से इंडिपेंडेंट है या वो खुद जो है भगवान है, पर ये अज्ञानता है. और ये अज्ञानता को कैसे हम हटा सकते हैं? प्रेममयी सेवा करके भगवान की. This has already been explained in the previous verse by the Lord. Now by his grace Arjuna is accepting him as the supreme truth in concordance with the Vedic injunction. तो अर्जुन भी यहाँ पे जो है, जो भगवान ने पहले बताया उसी तरीके से वो भी जो है दोहरा रहे हैं इस बात को, और जो कि शास्त्र भी बताता है कि कृष्ण ही जो है परम सत्य है. It is not that because Krishna is Arjuna's intimate friend, Arjuna is flattering him by calling him the Supreme Personality Godhead, the absolute truth. तो एक प्रश्न फिर आएगा जहन में कि ओहो ये तो मिली भगत है इनकी, ये अर्जुन जो है ये इसका सखा है, दोस्त है ना, इसलिए इसने पट्टी पढ़ा रखी है. कृष्ण तो छलिया है, इसने तो पट्टी पढ़ा रखी है, इसको जो है तू मेरे को गीता के माध्यम से महान बना दे, तू मेरे को बोल दे कि मैं ही भगवान हूँ. तो इसलिए जो है यहाँ पे अर्जुन ने जो है देखो भगवद गीता इसने 4 श्लोक बोल दिए कि देखो मैं ये हूँ, अपने भक्तों की ये करता हूँ, तो तू भी बोल दिया यार. तो अर्जुन इज नॉट फ्लैक्टरिंग हिम बाय कॉलिंग हिम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. व्हाटएवर अर्जुन सेज इन दीज 2 वर्सेस कंफर्म बाय वैदिक ट्रुथ. तो वो जो अर्जुन कह रहे हैं वो किसके आधार पे कह रहे हैं? वो शास्त्र के आधार पे कह रहे हैं. The Vedic injunctions affirm that only one who takes to devotion service to the Supreme Lord can understand Him, whereas others cannot. Each and every word of this verse spoken by Arjuna is confirmed by Vedic injunction. तो शास्त्रीय प्रमाण है, हर एक शब्द जो है यहाँ पे जो आ रहा है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम, ये सब जो है शास्त्र बयान देता है कि भगवान कृष्ण बिल्कुल है. तो एक प्रसंग आता है, उसमें कहते हैं कि कृष्णा इज ब्रह्मचारी. कृष्णा इज ब्रह्मचारी, although he spent so much times with the cowherd girls of Braj, the damsels of Braj, but still he's a brahmachari. So that we will discuss some other time. But pavitram and paramam bhavam purusham shashvatam. Shashvatam, he is eternal, transcendental. Yeah. तो जैसे भगवान जो है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं. तो जो व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, जो व्यक्ति हमेशा सब कुछ जानता हो, तभी तो वो जो है एटर्नल कहला सकता है. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये जो भगवद गीता ज्ञान है मैंने 12.5 करोड़ साल पहले जो है सूर्य देव विवस्वान को ये दिया था मैंने. तो कैसे उनको पता, वहाँ पे पूछे अर्जुन, है ना. तो इस तरीके से हम खुद ही जो है गीता और अन्य शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं. जब हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ेंगे, तो हम देख सकते हैं कितने सारे असुरों का वध किया भगवान ने. सो ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनालिटी. आदि देवम, ब्रह्मा को ज्ञान देने वाले आदिदेव, द ओरिजिनल लॉर्ड. अजन्म विभुम. So all the Vedic scriptures, whatever Arjuna is saying, support his statements. So in the Kṛṣṇa Upanishad, it is stated that the Supreme Brahman is the rest for everything, and Krishna has already explained that
everything resting on him. So the Mundaka Upanishad confirmed this, that the Supreme Lord in whom everything is resting can be realized only by those who engage constantly in thinking of him. This constant thinking of Krishna is Smaranam, one of the method of devotion service. It is only by devotion service to Krishna that one can understand his position and get rid of this material body. In the Vedas, the Supreme Lord is accepted as the purest of the pure. One who understands that Krishna is the purest of the pure can become purified from all sinful activities. One cannot be disinfected from sinful activities unless he surrenders unto the Supreme Lord. So, मत्तः सर्वत्रम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय. भगवान से परे कोई भी चीज नहीं है, भगवान पे ही हर चीज जो है स्थित है, भगवान ही जो है हर चीज के क्या है, स्रोत है. तो भगवान जो है वेद में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है सबसे शुद्ध है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर. वन हु अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर कैन बिकम प्यूरिफाइड ऑफ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज. तो जो कृष्ण को समझते हैं कि शुद्ध में सबसे सर्वोच्च शुद्ध है, तभी जो है हम क्या है शुद्ध हो सकते हैं अपने पापमय क्रियाओं से. जब तक हम भगवान कृष्ण को शरणागत नहीं होते तब तक हम अपने पापमय जीवन से शुद्ध नहीं हो सकते. Arjun's acceptance of Krishna as the supreme pure compiles with the injunctions of Vedic literature. This is also confirmed by the great personalities whom Narada is the chief. तो जो अर्जुन कह रहे हैं शास्त्र में उसको सही हर जगह अर्जुन कह रहे हैं बिल्कुल सही है. और दूसरा कि नारद जी जो कि सारे महान जीव जो है उनमें से एक महान है, chief of all the great personalities. Narad is also confirming. Yes, Krishna is the supreme personality of Godhead, and one should always meditate upon him and enjoy one's transcendental relationship with him. तो कृष्ण के ऊपर जो है हमें ध्यान लगाना चाहिए और उनका साथ जो हमारा दिव्य संबंध है उसको जो है हमें स्वीकार करना चाहिए, उसमें हमें आनंद लेना चाहिए. He is the supreme existence. He is free from bodily necessities, birth and death. Not only does Arjun confirm this, but all the Vedic literatures, the Puranas, histories, सब जो है क्या confirm करता है. In all Vedic literatures, Krishna is thus described, and the Supreme Lord himself also says in the 4th chapter, although I am unborn, I appear on this earth to establish religious principles. He is the supreme origin. He has no cause, for he is the cause of all causes and everything is emanating from him. तो चौथे अध्याय में भी भगवान क्या बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने बार बार आता हूँ, पर मेरे होने का कोई कारण नहीं है. मेरा कैसे प्राकट्य हुआ, मेरा जन्म हुआ, ऐसा नहीं है. मैं बस बार बार अवतरित होता हूँ धर्म की स्थापना करने की. तो प्रश्न उठता है, अच्छा तो भगवान देवकी के गर्भ में कैसे फिर आए? ये भी तो एक अलग बात है ना. क्यों यशोदा मैया को, नंद बाबा को उनको माता पिता बताते हैं. और डेफिनेशन भी यही है कि कोई व्यक्ति है उसके पिता हैं, माता हैं, हाँ, तो ऐसे करते करते हम जाएंगे. अच्छा आपके पिता के पिता कौन थे? ये थे. ऐसे करते करते एक ऐसे व्यक्ति तक जाएंगे जो व्यक्ति का कोई माता पिता ना हो, वो उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो वो भगवान है. ऐसे एग्जाम्पल देते हैं. तो फिर ये कैसे हो गया कि भगवान कृष्ण के माता पिता हो गए? तो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं उन्हीं को भगवान अपना माता पिता बना लेते हैं. तो पिछले जन्म में पृश्नि और सुतपा करके कौन थे? देवकी और वसुदेव थे. बहुत तपस्या करे कई जन्म बहुत अच्छे से. तो भगवान तो उनकी तपस्या क्या थी, क्या इच्छा थी कि हमें जो है आप जैसा पुत्र प्राप्त हो. तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो पुत्र कोई हो नहीं सकता, मैं तो अद्वैत हूँ, मेरे जैसा तो कोई और नहीं है. तो फिर भगवान जो है अपने भक्तों कृष्ण और सुतपा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, है ना. तो इस तरीके से जो है भगवान के माता पिता क्या
क्यों कैसे हैं वो इसलिए है। तो भगवान को अपने आनंद को वृद्धि करने के लिए वो कई सारे जीवात्माओं को जो है विस्तार करते हैं और उनकी आह्लादनी शक्ति अंतरंगा शक्ति जो है वो भी जो है कार्य करती है, उनको मदद करती है इसी आनंद को और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए। सो हम सबों का एक ही लक्ष्य है, भगवान कृष्ण को आनंद देना, उनके आनंद की वृद्धि करना, बस। सो अब नहीं कर रहे संसार में आके अपने को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं और फिर क्या है, दुखी है ना। तो इसलिए हमें इसी गलत फहमी से निकल के भगवत धाम जाना है भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए, और तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, इस संसार से निकल पाएंगे और भगवान की प्रेम में सेवा में लग पाएंगे। तो ये क्या होगा, दिस परफेक्ट नॉलेज कैन बी हैड बाय द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर हमें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। So here Arjuna expresses himself through the grace of Krishna. If we want to understand Bhagavad-gītā, we should accept the statements in these two verses. तो यहाँ पे जो अर्जुन बता रहे हैं इसको हमें स्वीकार करना होगा। This is called the परंपरा system acceptance और disciplic succession. तो अब जो है भगवान कृष्ण ने एक नई जो गुरु परंपरा है वो स्थापित करी, किसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से। तो अर्जुन यहाँ पे जो कह रहे हैं हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो यही बता रहे परंपरा। Unless one is in the disciplic succession, he cannot understand Bhagavad-gītā. जब तक कोई जो है गुरु शिष्य परंपरा में नहीं होगा तो भगवद-गीता वो नहीं समझ सकता। It is not possible by so-called academic education. Unfortunately, despite so much evidence in the Vedic literatures, those proud of their academic education stick to their obstinate conviction that Krishna is an ordinary person. तो जो लोग अपने सो कॉल मटेरियल किताबें जो कि बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, फलाना फलाना भगवान हो सकता है, या रिसर्च फिलोसोफर्स होते हैं, तो उससे हम जो है भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। क्या जान पाएगा वो व्यक्ति कि यही साधारण व्यक्ति है ना। सो केवल और केवल प्रेममयी भक्ति से हम जो भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे कि वो कैसे परम भगवान हैं। तो अब अर्जुन जो है क्या कहेंगे कि आप साधारण नहीं हो। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन माम वदासि केशवा ना ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव ना दानवः। O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. तो भगवान ने बोला था ना अभी कुछ लोग पहले ही कि ना ही जो ऋषि हैं ना ही देवता हैं वो मेरे को जान पाएंगे कभी, है ना। तो यहाँ पे फिर वो ये अर्जुन जो है चीज को क्या कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ जो आपने बोला वो सही है, ना ही देवता ना ही असुर जो हैं आपको समझ सकते हैं आप कौन हो, आपकी दिव्यता को नहीं समझ पाएंगे। So Arjun herein confirms that persons of faithless and demoniac nature cannot understand Krishna. तो श्रद्धा पात्र है, श्रद्धा जो है वो पात्र है जिस पात्र में हम इस ज्ञान को, भक्ति के, एक्चुअली कृपा को, नहीं तो कृपा ही है ना, तो श्रद्धा से हम जो है उस कृपा को ग्रहण कर सकते हैं और फिर जो है वो कृपा के माध्यम से हम और ज़्यादा जो है सेवा, रुचि और श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। तो जब तक हमारे पास ये पात्र नहीं है तब तक जो है हम जो भी कृपा हमारे पास आएगी भी हम उसको भी बहा देंगे, है ना। if our patra, if our utensil has holes, whatever we put in it will just drain out. So similarly we have to have mercy of the Supreme Personality Godhead and His pure devotees, and we need to have firm faith. We need to develop that firm faith. We need to develop that surrender, and
then we will be able to hold that kripa, that mercy which is flowing from Guru Parampara. Arjuna herein confirmed that persons of faithless and demoniac nature cannot understand Krishna. He is not known by the demigods, so what to speak of the so-called scholars of this modern world? असुर और देवता नहीं समझ पा रहे पिछले युगों के, अब नहीं समझ पा रहे कहाँ जो है आज के सो कॉल्ड स्कॉलर्स है, वो क्या समझ पाएंगे, वो क्या टिप्पणी देंगे भगवान के ऊपर, भगवान क्या है, कौन है। By grace of Supreme Lord, Arjuna has understood that supreme truth is Krishna and that he is the perfect one. One should therefore follow the path of Arjuna. He received the authority of Bhagavad-gītā as described in the 4th chapter. The parampara system of disciplic succession for understanding Bhagavad-gītā was lost, and therefore Krishna re-established that disciplic succession with Arjuna because he considered Arjuna as his intimate friend and a great devotee. तो जो गुरु परंपरा के बारे में भगवान चौथे अध्याय में बता रहे थे, स्थापित करी थी, उसी को जो है यहाँ पे जो है दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं अर्जुन किस तरीके से कि हाँ भगवान आपने जो बताया मैं उसको विश्वास करता हूँ और हमें भी उसी तरीके से गुरु परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त करना है, अथॉरिटी ऑफ भगवद गीता। तो इस तरीके से अर्जुन को भगवान ने जो है इस ज्ञान को दिया, क्योंकि वो उनके सखा हैं, उनके बहुत अच्छे सुंदर भक्त हैं। Therefore, as stated in our introduction to Gita Upanishad, Bhagavad Gita should be understood in parampara system. तो ये सेम चीज प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में भी बोली कि कैसे समझना है हमें भगवद गीता को परंपरा सिस्टम में। When the parampara system was lost, Arjuna was selected to rejuvenate it. तो इसका अर्थ ये भी है, कई बार भक्त ये पूछते हैं, ये लोग ये पूछते हैं कि भाई ये गीता ओरिजिनल जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी वो है, कैसे पता लगेगा? ऐसा तो नहीं कि बीच में कुछ साल बीते तो जो है ये गीता में श्लोक हेर फेर कर दिए या इसमें जो ट्रांसलेशन दिया ये हेर फेर हो गया हो। तो यहाँ पे क्या आया? When the parampara system was lost, Arjuna was selected to rejuvenate it. इसी तरीके से समय समय पे भगवान अपने भक्तों को भेजते रहते हैं जिससे धर्म का जो स्थापना है वो होता रहे, और भगवान खुद भी आते हैं। तो 500 साल पूर्व छंद अवतार में चैतन्य महाप्रभु आए, और उसके बाद षड गोस्वामी आए, उसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, so many great stalwart brahmacharis and sannyasis and great devotees of the Lord, they appeared on this land and they established Krishna consciousness over and over again. And then Prabhupada appeared. Prabhupada took a step ahead and he distributed this knowledge of Bhagavad Gita throughout the entire world. So, the acceptance by Arjuna of all that Krishna says should be emulated. Then we can understand the essence of Bhagavad Gita, and then only can we understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. हमें गीता का सार समझना है और तभी जो है हम समझ पाएंगे कि कृष्ण परम भगवान हैं। तो आज हम जो है इतना चर्चा करेंगे और कल जो है इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो हम कल जानेंगे कि अब अर्जुन और ज़्यादा जानना चाहते हैं भगवान, और बताइए अपने दिव्य गुणों के बारे में, अपने दिव्य ऐश्वर्य के बारे में। तो इस तरीके से हम जो है कल चर्चा करेंगे। सो कोई प्रश्न है आपके तो आप जो है पूछ सकते हैं और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। हरे कृष्णा। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय।